Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 8, that is Popular Beliefs and Religious Debates. तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉपुलर बिलीव्स के बारे में, लोगों के जो उस टाइम पे क्या बिलीव थे धार्मिक अपने धर्म को लेके, और क्या क्या मूवमेंट चली, क्या क्या ऐसी सोच थी लोगों की, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड से, ग्लोजरी से। द फर्स्ट वन इज़ योगा, अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज फॉर मेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल। मतलब कि हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए हम योगा करते हैं, दैट इज़ योगा। नेक्स्ट इज सिद्धार्थ, दोज हु हैव अटेन कंप्लीट अवेयरनेस और नॉलेज, जिन्हें हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होती है, पूरा हर चीज़ पता होती है, वो होते हैं सिद्धार्थ। नेक्स्ट इज मिस्टिक, वन हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल ट्रूथ दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो लोग ऐसे सच पर विश्वास करते हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, और वो मेनली किससे रिलेटेड होते हैं? स्पिरिचुअलिटी से, मतलब अपने धर्म से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज दरगाह, ग्रेव ऑफ अ मुस्लिम सेंट, जैसे जहाँ पे दफनाया जाता है मुस्लिम संत को, उसे उन्हें बोला जाता है दरगाह। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो टॉपिक है न्यू ट्रेंड्स इन ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम AD 800 to 1800। With the introduction of new trends and elements existing, religious underwent great changes during the medieval period. Belief system, rituals, and cult of Hinduism in particular witnessed remarkable novelty due to the rise of devotional movement. The development of a new Sanatan Hindu philosophy based on the reinterpretation of the Upanishads and the rise of Tantrism, a doctrine based on certain mantras, yogic mudras, magical diagrams, etc. Besides, it was during this period that Sikhism, one of the world's major religions today, was founded and propagated on a wide scale under the pioneering leadership of its great gurus. Another very significant development was emergence of Islamic mystic, which reflected the broad resilient side of Islam. Christianity also flourished in India during this time. ये जो टाइम था 800 से 1800 AD का, इस टाइम पे बहुत सारे धर्मों का विकास हुआ, वो उभर के आए। जैसे कि जो हिंदू फिलॉसफी थी उसमें एक नया इंटरप्रिटेशन आई, जो कि उपनिषद, और इसकी वजह से क्या किसको बढ़ावा मिला? तांत्रिज्म को। इसमें क्या होता था कि कुछ मंत्र या योगिक मंत्र या मैजिकल डायग्राम, जिसे हम काला जादू बोलते हैं, उससे रिलेटेड फिलोसफीज थी। इसके साथ साथ इस पीरियड पे सिखिज्म ने भी काफ़ी बड़ा जो अपना ग्राउंड है वो तैयार कर लिया, और ये अपने गुरु की लीडरशिप के बेस पे बढ़ते गए और बढ़ते गए। और इसी के साथ साथ इस्लामिक जो रीजन है, इस्लामिक जो धर्म है, उसका भी काफ़ी ग्रोथ हुई, और साथ साथ क्रिश्चियनिटी है वो भी इसी टाइम के अंदर फ्लरिश हुई, मतलब इसी टाइम के अंदर ब्रूम हुई। 8.2, that is Bhakti movement. Bhakti was most popular movement that took many people away from Buddhism and Jainism and traditional Hinduism. The Bhakti movement, which stresses the union of individual with God and had been worked long before the coming of the Turks. It was begun by the Alvar saint, who were Vaishnavas, devotees of Lord Vishnu, and the Nayanar saints, who were Shaivas, devotees of Lord Shiva. These saints promoted caste equality. Some of them also preached the equality of men and women. All this helped reduce social evils. It also put a check on Hindus becoming Buddhist or Jain to escape social discrimination. The legendary Nayanar saints were Appar, Sambhadar, and Sundarar. The famous Alvar saint was Periyalvar and his daughter Andal, Ondrathipodi, Alvar, and Namalvar. The Nayanar and Alvar saint composed hymns and hagiographies, graphical hymns in praise of saint. They led large group of devotees from one temple to another singing these hymns. Trivusangamma is an excellent collection of hymns composed by Manikavaskar, a Nayanar saint. The hymns tell us that the saint came from various castes. They were Brahmins and non-Brahmin include Shudras and अनटचेबल्स। भक्ति मूवमेंट जो है वो बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि इसने लोगों को अपने अपने धर्मों से, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म से अलग कर दिया था। क्योंकि इनका मानना ये था कि ये मूवमेंट इसीलिए चलाई गई थी कि जो भगवान है वो एक है, और लोगों को अलग अलग भगवानों की ज़रूरत नहीं है। और ये मेनली स्टार्ट हुई थी टर्क ने स्टार्ट करी थी ये वाली जो मूवमेंट है। और यहाँ पे इट वाज बिगिन बाय अलवर संत ने शुरू करी थी, और नायनर ने। जो अलवर संत थे वो वैष्णवास थे, मतलब कि विष्णु के भक्त थे, और जो नायनर थे वो शैवास थे, जो कि लॉर्ड शिवा के संत थे। इन्होंने प्रमोट करा इक्वालिटी को प्रमोट करा कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ संत ने
इसके साथ साथ मेन और वुमेन की इक्वालिटी, मतलब औरत और आदमी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, इसको भी काफ़ी प्रमोट करा। और इसकी वजह से जो सोशल इविल्स हैं, जो कि फालतू के झगड़े या क्राइम होते थे, इसकी वजह से वो काफ़ी कम हुए। और इस पे ये भी चेक रखा गया कि जो हिंदूज़ हैं वो बुद्धिस्ट और जैन बन रहे हैं, ताकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और जो लीजेंडरी मतलब लीडर थे नयनर संत के, वो थे अप्पर, संबंदर एंड सुंदरारर। और फेमस अलवर सेंट थे, वो थे अंडल, द्रौपदी, अलवर और नमलवर। और जो नयनर और अलवर संत थे, इन्होंने हाइम्स बनाए और हेजियोग्राफिक्स बनाए, जो कि हाइम्स हम कह सकते हैं जो ये होते हैं श्लोक वगैरह होते हैं, इन्हें हम हाइम्स बोलते हैं। तो इन्होंने ये काफ़ी सारे बनाए, जो कि ये गाते रहते थे, कहीं भी जाते थे ग्रुप में तो ये अपने हाइम्स जो हैं वो गाते रहते थे। और जो तिरुवु संगम है, ये एक कलेक्शन था हाइम्स का, जो किसने बनाया था? मणिकव सागर ने बनाया था, जो कि एक नायनर संत था। और ये हाइम्स हमें ये बताते हैं कि जो संत हैं वो काफ़ी कास्ट से आए हैं, जैसे कि कुछ ब्राह्मण से, कुछ नॉन ब्राह्मण से, कुछ शूद्रा से और कुछ अनटचेबल से, क्योंकि ये इक्वालिटी में बिलीव करते थे और सब ने अपने अपने हाइम्स जो हैं इसमें बनाए हुए थे। Next is Adi Sankara was born in the 9th century in a village called Kaladi in Kerala. He was an amazing genius who has helped in the revival of Hinduism. He worshipped Shiva and inspired the whole country by his books, commentaries and arguments. He established 5 centers of learning called Mathas. These Mathas were at Badrinath, Dwarka, Sringeri, Puri and Kanchipuram. According to his Vedanta philosophy, God and created beings are one and the same. He emphasized that knowledge was important to reach God. One of his most popular hymn is Bhaja Govindam. Sankara Marathas are located in all the 4 corners of India. By the age of 32, he had become the famous all over India. One of the most important things Sankara's life brings out in the culturality unity of India. Even though different rules have different regions, Sankara's choice for 4 corners of India for his mathas show how he regarded India as a cultural यूनिट। वो एक संत थे आदि शंकरा, ये जो है 9th सेंचुरी में ये बॉर्न हुए थे। और कौन से विलेज में बॉर्न हुए थे? कलादी, जो कि केरला में है। ये बहुत बड़े विद्वान थे, जीनियस थे, क्योंकि इन्होंने हिंदुइज्म को एक नया रूप दिया। ये जो है शिवा की पूजा करते थे, उन्हें वर्शिप करते थे और इंस्पायर करते थे सारे देश को, सारी कंट्री को, उनकी बुक से, उनके आर्ग्यूमेंट से और उनकी कमेंट्री से, जो भी शिवा ने कहा है उससे ये सबको इंस्पायर करते थे। इन्होंने 5 लर्निंग के 5 शिक्षा सेंटर बनाए थे, जिन्हें बोला जाता था माथास। और ये माथास कहाँ थे? बद्रीनाथ में, द्वारका में, श्रृंगेरी में, पुरी में और कांचीपुरम में। और इनकी वेदांता की जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि भगवान ने सबको एक समान बनाया है, कोई भी एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। और ये एम्फेसाइज करते थे कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाता है, क्या क्या ज़रूरी होता है उसके लिए, ये वो चीज़ों को सिखाया करते थे। और जो इनका बहुत पॉपुलर हाइम था, भजन था, वो था भजा गोविंदम। और इनके जो माथास थे ये पूरे इंडिया के चारों कॉर्नर्स में लोकेटेड थे। और एट द एज ऑफ 32 ये बहुत फेमस हो गए थे पूरे इंडिया में। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट थिंग है इनकी ज़िंदगी की, वो ये था कि यूनिटी, कल्चरल यूनिटी ऑफ इंडिया। ये चाहते थे कि इंडिया में जो है वो सारी यूनिटी हो, कल्चरल इंडिया बना रहे। और डिफरेंट रूलर्स और डिफरेंट रीजन्स के बावजूद भी जो सरकारास की चॉइस थी वो ये थी कि चारों कॉर्नर को इंडिया के हर कल्चरल यूनिट को रिगार्ड किया जाए, मतलब हर कल्चर को एक एक जो माथाज है वो रिगार्डेड हो। ठीक है। नेक्स्ट इज द रामानुज हु लिव्ड इन द 11th century in Tamil Nadu and Madhvacharya who lived in the 13th century in Karnataka were 2 other great religious teachers and philosophers. Ramanuja emphasized the concept of bhakti. He believed that devotion of God was more important than knowledge, while Madhava popularized the worship of Krishna, the worship of Vishnu and his incarnations, and the worship of Shakti in the various forms led to the building of many temples. Buddhism was followed mainly in Pala kingdom. In western and southern India, the trading communities followed Jainism and built some exquisite temple in Gujarat and Rajasthan. The Nathpanthi sect practiced Nirguna. Most Nathpanthi preachers were low caste professionals such as tanners, washermen, oil pressure, cobbler and fishermen. They drew followers from all castes. They stressed on meditation and on mental physical discipline through yoga. They were also called सिद्धास। अब जो रामानुज थे, जो कि तमिलनाडु से थे और ये 11th सेंचुरी में थे, और मध्वाचार्य जो कि कर्नाटका से थे, ये थे 13th सेंचुरी में। दोनों ही बहुत बड़े संत थे, टीचर थे, फिलोसोफर थे।
थे, जो रामानुजन थे, उन्होंने एम्फोसाइज़ किया, उन्होंने मेन जो कंसेप्ट अपना रखा वो ये था भक्ति का, कि उनको था कि लोगों को बिलीव करना चाहिए भगवान की भक्ति में, ना कि ज़्यादा नॉलेज में। लेकिन जो महात्मा थे वो पॉपुलराइज किसके लिए थे, वो ज़्यादा पॉपुलर थे कृष्णा की वर्शिप के लिए, लॉर्ड कृष्णा की भक्ति किया करते थे। इस टाइम पे जो टेम्पल है, मंदिर है, वो बनने शुरू हो गए थे। उसके बाद जो नाथपंथी आए, नाथपंथी क्या थे, ये मेन मेडिटेशन पे और मेंटल और फिजिकल डिसिप्लिन जो कि योगा पे, ये उस पर स्ट्रेस देते थे। इनका काम था कि मेडिटेशन से जो हमारा फिजिकल है और मेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है। और ये बेसिकली लो कास्ट से होते थे, जैसे कि ये वॉशरमैन होते थे, ऑयल प्रेशर्स होते थे, कॉबलर, फिशरमैन, ये सब नाथपंथी में आते थे और इन्हें सिद्धास भी बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट इज द लिंगायत और वैष्णवा मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका. It gained strength in the 12th century with Basava, also called Baswana, as one of the leaders. This Shaivite movement condemned the caste system and meaningless rituals. People from all sections of the society supported the movement. The Vaishnavas did not discriminate against women. Akamaha Devi, and the daughter of the prosperous merchant, was a renowned Vaishnava saint and writer. She led a group of women saints. The Vaishnava saint of Maharashtra called Varakaris were worship of Lord Vethla, Vishu of Pandhara, Janeshwar, Namada, Takaram, and Ekanath were among the saints who popularized Vithala worship. They were family men and did not give up a weddingly life. They rejected rituals and composed devotional poems called Abhangs and Marathi language. Janeshwar wrote the Janeshwari and a Maratha commentary on the Bhagavad Gita. Some of the saints like Namadeva, a tailor, belonged to low caste. Chokamela, a member of community considered untouchable, was a Varakari poet of Pandharpur. He advised his followers to share in the pain of others. His wife and the son composed poetry. चोकामेला वॉज डिनाइड असेस टू द विट्ठला टेम्पल. जो लिंगायत और वैष्णवा मूवमेंट है ये कर्नाटका में शुरू हुई थी और इसको जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो 12th सेंचुरी में मिली थी और जो कि इनके लीडर थे बसावा. और जो शेवाइट मूवमेंट मूव किया कास्ट सिस्टम को और जो फालतू के रिचुअल्स है उसे. सर जितने भी सेक्शन थे सोसाइटी के, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया बहुत अच्छे तरीके से. और जो विराश्वस थे ये वुमेन के भी साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, ये भी वुमेन और मैन को बिल्कुल एक समान समझते थे. और जो इनकी डॉटर थी उन्होंने वुमेन्स ग्रुप के वो ग्रुप थी, वुमेन संत के लीडर थी वो. और जो वैश्वा सेंट थे महाराष्ट्र के, जिन्हें कि वाराकारिस बोला जाता था, ये लॉर्ड विट्ठला की पूजा करते थे, मतलब लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे. और इनके जो संत थे वो काफ़ी पॉपुलर थे विट्ठला वर्शिप के लिए ही. और ये कैसे चलता था कि इनका फर्दर जो इनके फैमिली मैन थे वो आगे आगे संत बनते रहते थे और ऐसे ऐसे उनका फर्दर उनका बेटा संत बनता था, फिर उसके बाद उसका बेटा संत बनता था, ऐसे ही ये चलता था. उसके बाद बहुत सारे संत ऐसे थे जो कि लो कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे कि नामदेव ये जो थे ये भी लो कास्ट से बिलोंग करते थे. चोखा मेला ये किसके मेंबर थे, कम्युनिटी के मेंबर थे, लेकिन ये जो है अनटचेबल थे. और ये एक वराकरी पोइट थे पंधारपुर में. ये अपने फॉलोवर को एडवाइस करते थे कि वो अपनी पेन को शेयर करें दूसरों के साथ. और इनका जो बेटा और इनकी जो वाइफ थी वो भी पोइट्री लिखा करते थे. और चोखा मेला जो है वो विट्ठला टेम्पल में नहीं जाया करते थे, उन्हें वहाँ जाना मना था. नेक्स्ट टॉपिक में नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया गया. नॉर्थ इंडिया में एक भक्ति सेंट प्रोटेस्टेंट थी जो कि मीराबाई थी. ये जो है मैरिड थी एक राणा ऑफ मेवाड़ से, लेकिन इन्होंने डिसाइड करा कि ये अपनी सारी लाइफ जो है वो लॉर्ड कृष्णा के नाम करेंगी. तो शी गॉट मैरिड. द ओनली थिंग इंसिस्टिंग ऑन कैरिंग टू हर हस्बैंड्स हाउस वॉज एन आइडियल ऑफ कृष्णा. इनको सिर्फ इसी मजबूरी में शादी करना पड़ा क्योंकि इनके घर वालों ने से कहा कि जहाँ तेरी शादी हो रही है वो भी कृष्णा जैसे ही हैं, वो भी कृष्णा के आइडल हैं, वो भी कृष्णा को अपना आइडल मानते हैं. लेकिन जो मीराबाई के हस्बैंड थे और जो उनकी ननद थी, डैट इज सिस्टर इन लॉ थी, उसने उसको प्रेयर करने से रोका और उसको मारने की भी कोशिश करी. और उसने मीराबाई थी उसने एक भजन में भी लिखा है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, मतलब कि द कप ऑफ पॉइजन वॉज सेंट बाय राणा हर हस्बैंड. तो उन्हें लगा कि ये बीमार है, पागल है जो ये ऐसी हरकतें करती है, लेकिन उसने अपनी जो जीवन है वो कृष्ण को ही डोनेट कर दिया था और वो डिवोट कर दिया था. वो चाहती थी, उसने 1400 पोएम्स लिखी कृष्ण जी के ऊपर और जो कि राजस्थानी और गुजराती लैंग्वेज में थी, जो कि औरली मीराबाई जो थी अभी तक जिंदा है लोगों के मनों में. उसकी पोएम जो है लोग आज तक भी याद करते हैं, उसकी जो भक्ति है वो आज तक भी एज अ आइडियल लोग उसे देखते हैं. उसके बाद शंकरा देवा एक भक्ति सेन थे असम के. इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो लॉर्ड विष्णु के नाम डिवोट कर दी थी और ये सारी जो कंट्री में यही मैसेज देते थे असामी लैंग्वेज में, जो गाने गा के डांस करके, कि अपना जो
भगवान है वो रखो, उनको प्रेज़ करो, ये सारा यही मैसेज गैदर करते थे। उसके बाद जो वल्लभाचार्य हैं, ये तो तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। इन्होंने टेम्पल बनाया लॉर्ड कृष्णा के लिए मथुरा में। और फिर एक सूरदास थे जो कि ब्लाइंड पोएट थे, म्यूजिशियन थे, जो कि कृष्ण टेम्पला जिन्होंने एसोसिएट किया कृष्णा टेम्पल आगरा में, मथुरा में, और उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी सारे डिवोशनल वर्क भी किया जैसे कि सुरसागर। और बंगाल में एक संत थे चल्लटाया देवा, ये भी पॉपुलर थे कृष्णा की वर्शिप के लिए। इन्होंने भी उनके लिए काफ़ी भक्ति भरे सॉन्ग जो है डिवोशनल भजन को गाया। देन एक संत थे रामानंदा, ये वाराणसी में यही मैसेज, ये जो है लॉर्ड रामा के जो है डिवोटी थे, ये उनकी पूजा करते थे, उन्हें पूजते थे। तुलसीदाम जी ने रामाचरितमानस लिखी थी, ये भी मोस्ट रिस्पेक्टेड लिटरेरी वर्क है लॉर्ड रामा की लाइफ के ऊपर।